ایران کے مختلف شہر پھر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ جزیرہ قشم پر متعدد میزائل حملے ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے تصدیق کر دی۔ بتایا گیا کہ ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ جزیرہ قشم کے مختلف مقامات پر 10 سے 11 میزائل آ کر گرے۔ ایرانی صوبہ ہرمزگان میں تازہ حملے میں ایک شخص شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب کویت کی سرحدی چوکیوں اور آئل پلیٹ فارمز پر بھی حملہ ہوا۔ حملے میں فیلڈ پر موجود ایک کارکن زخمی ہو گیا۔ کویتی وزارت دفاع نے حملے کی تصدیق کی ہے۔ کویتی حکام نے ڈرون حملوں کو مجرمانہ کارروائی قرار دے دیا۔ اہم خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے کراچی سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ گڈاف سٹی میں رواں سال کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑا ہے۔ کرپلانی ولاز میں 8 ملزمان کی 8 کروڑ سے زائد کی واردات رپورٹ ہوئی ہے۔ اسلحے کے زور پر 175 تولہ سونا، 300 تولہ چاندی لوٹی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کیا کچھ ہوا ہے، بات کریں گے محمد کاشان سے۔ کاشان، کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اس سے متعلق؟ جی بالکل، دیکھیں گڈاف سٹی میں رواں سال کی سب سے بڑی ہاؤس رابری کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ اس حوالے سے پولیس حکام کا بتانا ہے کہ 8 ملزمان نے 8 کروڑ سے زائد کی واردات کری ہے۔ اسلحے کے زور پر 165 تولہ سونا، 300 تولہ چاندی لوٹی گئی ہے۔ لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور بچوں کا سامان جو ہے ملزمان اپنے ہمراہ ساتھ لے گئے۔ ملزمان رات 2:30 بجے کے قریب 4 موٹر سائیکلوں پر آئے تھے۔ سب سے پہلے چوکیدار کو باندھ کر اندر داخل ہوئے۔ اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تقریباً 3 گھنٹے تک لوٹ مار کری ان ملزمان نے، جبکہ شاطر ملزمان نے گھر کے کسی فرد کے موبائل فون نہیں چھینا کر کے جس حصے کو ہاتھ لگایا اسے کپڑے سے اچھی طرح صاف بھی کر دیا۔ ملزمان نے واپسی پر چوکیدار سے پوچھا کوئی فیملی بھی رہتی ہے۔ چوکیدار کی جانب سے بتایا گیا کہ صرف یہی فیملی یہاں پر رہائش پذیر ہے۔ پولیس حکام کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ واردات کے بعد پولیس کی بھاری نفری اس وقت جائے وقفہ پر موجود ہے۔ کرائم سین یونٹ کا عملہ موقع پر پہنچا جو کہ شواہد جمع کر رہے۔ شواہد جمع کرنے کے بعد کچھ دیر میں واردات کا مقدمہ بھی گڈاف سٹی تھانے میں جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے کاشان، آپ کا بے حد شکریہ۔ آبنہ ہرمز میں قبرص کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد کشیدگی۔ امریکہ کا ایران کے 140 اہداف پر حملے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایرانی میزائل، ڈرونز، بحری تنصیبات، اسلحے، ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران نے بھی امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا۔ عمان، اردن، قطر، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ پھر آمنے سامنے، دونوں کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے۔ آبنہ ہرمز میں قبرص کے تجارتی جہاز پر حملے کے بعد کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ نے ایران کے 140 اہداف پر حملے کیے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق تجارتی جہاز پر ایرانی حملوں کے بعد رد عمل دیا گیا۔ ایرانی میزائل، ڈرونز، بحری تنصیبات، اسلحے کے ذخائر، مواصلاتی نیٹ ورک اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران بھی خاموش نہ رہا۔ عمان، اردن، قطر، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات اور دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے عمان کی دقم بندرگاہ پر امریکی طیارہ بردار جہازوں کے لاجسٹک سپورٹ مراکز پر حملے کا دعویٰ کیا۔ بیان میں کہا کہ ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو شدید اور اچانک حملے میں ہدف بنا کر تباہ کیا۔ قطر میں العدید فضائی اڈے کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ جنگی طیاروں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز کو تباہ کر دیا۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ دفاعی نظام، گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ڈرون ہینگر کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ کراچی کے شہری لٹیروں کے نشانے پر ہے۔ طارق روڈ پر رکشہ سوار خواتین سے لوٹ مار کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکو اسلحے کے زور پر خواتین سے زیورات لوٹ کر فرار ہوئے ہیں۔ بہادرآباد تھانے کی حدود میں واردات کی فوٹیج منظر عام پر آئی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور فوٹیج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ کراچی کے شہری لٹیروں کے نشانے پر ہے، ایک کے بعد ایک واردات رپورٹ ہو رہی ہے۔ طارق روڈ میں افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا ہے جہاں پر رکشہ سوار خواتین سے لوٹ مار کی گئی ہے اور ڈاکوں کی جانب سے اسلحے کے زور پر خواتین سے زیورات لوٹ کر وہ فرار ہوئے ہیں، جو کہ دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ بہادرآباد تھانے کی حدود میں واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ ان کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 ملزمان دیکھے جا سکتے ہیں جنہوں نے رکشے کے آگے جا کر اس کو کراس کیا، اس کو روکا اور اس کے بعد یہ واردات کی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکو اسلحے کے زور پر خواتین سے زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات سے متعدد افراد جاں بحق ہو گئے۔ بولان کے علاقے مچ میں بس اور ٹرک کے درمیان تصادم ہوا جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں پورٹ قاسم کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار شخص جان سے گیا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ ادھر لاہور میں پارک عرب سوسائٹی کے قریب موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں 13 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا۔ فیصل آباد میں جڑاوالا روڈ پر فیکٹری کے کمرے کی چھت گرنے سے مزدور جاں بحق ہو گیا۔
बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वफाकी आईनी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। मोनाल रेस्टोरेंट गिराना फैसला ये कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से सीडी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए। अदालत की जानिब से ये कहा गया ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत भी जारी की गई है। इसके अलावा अदालत की जानिब से कहा गया कि इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मोनाल रेस्टोरेंट को मिसमार करने का हुक्म दिया था। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, जबकि अदालत की जानिब से सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत की जानिब से बताया गया कि मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बढ़कर 2900 रुपए का हो गया। इदारा शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कराची में आटे को पर लग गए। एक साल में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। वफाकी इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इजाफे ने शहरियों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया। कराची में आटे का 20 किलो का थैला 18 से बढ़कर 2900 रुपये हो गया। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 1627 से बढ़कर 2800 रुपये हो गया। रावलपिंडी में आटे का 20 किलो का थैला 1613 रुपये से बढ़कर 2786 रुपये में दस्तयाब होने लगा। आगे बढ़ेंगे। दुनिया के बड़े कंटेनर्स जहाज़ों में शामिल एसएमसी एरिका कराची पोर्ट पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि कराची पोर्ट ने फिर मेगा कंटेनर जहाज़ की कामयाब हैंडलिंग की सलाहियत भी साबित कर दी है। ये इस हवाले से बताया जा रहा है कि एमएससी एरिका के दौरे के दौरान 3000 से ज़ायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के है, जबकि कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जहाज़ चीन रवाना होगा। केपीटी की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। अच्छी खबर यह है कि दुनिया के बड़े कंटेनर जहाज़ों में शामिल हुआ है, बता रहे हैं इस हवाले से। और मज़ीद बात करेंगे, कफ़ील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल सामने आ सकी हैं? देखिए, दुनिया के बड़े कंटेनर जहाज़ों में शामिल एमएस एरिका कराची पोर्ट जो है वो पहुंच गया है। 398 मीटर तवील जबकि 20,000 गुंजाइश वाली ये मेगा जहाज कराची पोर्ट पर लगनजाफ हो चुका है। और केपीटी के मुताबिक एक बार फिर मेगा कंटेनर्स की जहाज की कामयाबी हैंडलिंग के साथ जो है वो साबित भी की है। इसके वजह से अगर हम बात करें तो इसके दौरान जो है वो 3000 से ज़ायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्के है। और जहाज के कप्तान ने कराची पोर्ट की पायलट की पेशेवराना महारत और नेविगेशन को अप्रिशिएट किया, जबकि मास्टर ने कराची पोर्ट के खित्ते की बेहतरीन बंदरगाहों में जो एक करार दिए। इससे अगर मैं बताऊं तो मौजूद तौर पर दालियान चीन के लिए रवाना होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो इसको रवाना कर दिया जाएगा। ठीक है, एमसी एरिका बताया जा रहा है कि कराची पोर्ट पर पहुंच चुका है। इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश में कई रोज़ की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जान की बाजी हार गए। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बारिश और सैलाब से जनूबी मशरकी इलाकों के 7 अजला मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज़ायद अफराद फंसे हैं, जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बांग्लादेश में कई रोज़ की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जान की बाजी हार गए। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बारिश और सैलाब से जनूबी मशरकी इलाकों के 7 अजला मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज़ायद अफराद फंसे हैं, जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बांग्लादेश में कई रोज़ की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जान की बाजी हार गए। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बारिश और सैलाब से जनूबी मशरकी इलाकों के 7 अजला मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज़ायद अफराद फंसे हैं, जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बांग्लादेश में कई रोज़ की शदीद बारिशों और सैलाब के बायस लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जान की बाजी हार गए। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक बारिश और सैलाब से जनूबी मशरकी इलाकों के 7 अजला मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में 2 लाख से ज़ायद अफराद फंसे हैं, जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों की एक नई लहर को मुकम्मल किया है। ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। सैनकॉम की जानिब से दावा सामने आ रहा है। हमलों में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, इसके अलावा साहिली रडार साइट्स निशाना बने हैं। मिज़ाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया है। लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि मां शहर में के पंपिंग स्टेशन पर हमले में 1 शख्स जाँ भाग, जबकि 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि
मशरिक़ वस्ती में जो सूरत हाल थी वो फिर से कशीदा होती नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर अगर हुर्मुज़ के हवाले से बात की जाए तो हुर्मुज़ से मुतालिक ही ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं कि वहाँ पर जहाज़ों को अटैक करने के बाद एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन नज़र आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया है और ये दावा सेंटकॉम की जानिब से किया जा रहा है। और इसी पर ईरान की जानिब से भी जवाबी वार किया गया है। उर्दन, कुवैत, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए गए हैं। आपको बता दें कि ईरान ने ड्रोन के ज़रिए भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। इसके अलावा उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। ये भी बताया गया कि एयरबेस पर मिसाइल स्टोरेज और फ्यूल टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं, जबकि कुवैत में अली अल सालेम एयरबेस पर अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी कई बार अली अल सालेम एयरबेस पर बहुत से अहदाफ को निशाना बनाया जाता रहा है। अपने नाज़रीन को बता दें कि कुवैत में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा फ्यूल स्टोरेज टैंक्स भी तबाह कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। अमेरिका के जो हमले किए गए उसके बाद ईरान की जानिब से जवाबी वार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि उर्दन, कुवैत, बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरान ने ड्रोन के ज़रिए भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से ये बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में अहम डिजिटल इस्लाहात हुई हैं। आपको बता दें कि सरमायाकारों के लिए अकाउंट खोलना अब मज़ीद आसान हो चुका है, आसान बना दिया गया है। माली साल 2026-25 में स्टॉक मार्केट में 48% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि 1,90,277 नए सरमायाकार मार्केट में शामिल हुए हैं और कागज़ी कार्रवाई में कमी और इसके अलावा एज ऑफ डूइंग बिजनेस को मज़ीद फ़रोग मिला है। आपको इस हवाले से अपडेट कर दें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को मज़ीद फ़रोग मिला है और इससे पहले ये बताया जा रहा था कि सरमायाकारों के लिए अकाउंट खुलवाना मज़ीद आसान बना दिया गया है। माली साल 2026-25 की बात कर लें तो स्टॉक मार्केट में 48% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।